Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, in the previous topic we have studied about convection, conduction, and now we will study radiation. Students, these are three ways: radiation, conduction, convection. What I told, heat is transferred by three ways. हीट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक यूटेंसिल से दूसरे यूटेंसिल में, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी. ओके, एवरीवेयर heat is transferred, but how the heat is transferred? By three ways heat is transferred. One is by radiation, other is conduction, and one more convection. So we have studied first conduction, that heat transfer in solid, that is mostly in solid is method of conduction. Liquids and gases by convection. And radiation, third is, students, we will study now radiation. So radiation is that, you can say, process in which heat is transfer. Heat is transfer without any medium. Means this is that mode, you can say, radiation is that process in which heat is transferred but does not require any medium. So here, not require any medium. So transfer of heat by radiation. So heat is transferred but does not require any medium. Heat is transfer but not require any medium. Such type of process is called radiation. इसमें क्या है, मीडियम हो भी और नहीं भी हो तब भी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी. उस टाइप के हम हीट ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं रेडिएशन. अब लेट्स वी विल सी दिस वन स्टूडेंट्स. रेडिएशन के, it take place where medium is present or not present. So the heat transfer, it can take place where a medium is present or not. Suppose this is a sun and here we are present. So we are from many kilometers away from the sun. This is our planet Earth. Now you can say near the sun there is not any medium present. That heat cannot be transferred by any medium. It transfer only without any medium. So sun, because of this sunlight, our land become very hot during summer. समर में हमारी अर्थ क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वेरी हॉट. हाउ दिस हीट इज़ ट्रांसफ़र, दिस इज हीट, ना ही यहाँ पे कोई एयर है, ना ही कोई सॉलिड चीज़ है स्टूडेंट्स, ना ही कोई गैसियस चीज़ प्रेजेंट है जो वहाँ से यहाँ तक उसको ले आए. सो where no medium is required, that type of heat transfer process is radiation. Now you will see, we sit in front of a room heater, then what will happen? We feel hot. If we will any utensil become hot, अगर कोई भी utensil बिल्कुल hot हो रखा है, आपने उसको फ्लेम गैस से उतार के आपने उसको नीचे रख दिया, गैस से आपने क्या रख दिया स्टूडेंट्स, उसको नीचे, तो वो कूल्स डाउन हो जाएगा. क्यों होगा कूल्स डाउन? बिकॉज उस हॉट ऑब्जेक्ट की हीट, ये क्या था, एक यूटेंसिल जिसको हमने गैस से उतार के रख दिया. नाउ दिस आफ्टर सम टाइम, फर्स्ट इट वाज वेरी हॉट बट आफ्टर इट बिकम कूल. व्हाई? बिकॉज नाउ इट ट्रांसफ़र इट हीट टू द सराउंडिंग. अब ये हीट अपने कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है स्टूडेंट्स, कहाँ सराउंड हो रहा है, कहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इन द सराउंडिंग. हीट ट्रांसफ़र ऑलवेज फ्रॉम हायर टू द लोअर, हायर से लोअर में ट्रांसफ़र होती है. सो यहाँ पे हायर टेम्परेचर था, लोअर टेम्परेचर में. नाउ इट ट्रांसफ़र, व्हेन इट स्टॉप ट्रांसफरिंग, it stops transferring when the medium, when both the temperature, surrounding temperature and the temperature of this beaker become same. दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम.
जब सेम हो जाएगा दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस बीकर बिकम सेम, देन स्टॉप हीट ट्रांसफरिंग. Now what we will see here, all hot bodies, जितनी भी hot bodies है स्टूडेंट्स, all radiate heat, all heat को radiate करती रहती है. Now when this heat fall on some objects, अगर वो किसी object पे गिरती है, a part of it is reflected. मान लो यहाँ पे ये एक object है, ये heat radiate कर रहा है. ओके ये हीट क्या कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है. सो a part of it is reflected, a part is absorbed and part may be transmitted. So उसमें से जो इतनी भी हीट इसकी गिर रही है इसके ऊपर, तो कुछ हीट तो इसके ऊपर क्या है, ये हॉट है, ये इसको ट्रांसफ़र भी कर देगा, कुछ हीट ये एब्जॉर्ब भी करेगा. ओके कुछ ऐसे जैसे सन की लाइट, बेटा सन की जो तो हीट है, ये एक हॉट मीन्स यू कैन से हॉट बॉडी है जो क्या रेडिएट करती रहती है, हीट को. नाउ व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन द अर्थ, जब ये हीट अर्थ के ऊपर गिरेगी, व्हाट हैपन, नाउ सम हीट यू कैन से ओनली वेरी फ्यू, आप ये कह सकते हो प्लांट्स 1% किसने यूज़ कर ली इस हीट को, यूज बाय प्लांट्स, एंड सम हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड अदर इज़ रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस. बाकी हीट क्या है, हमने स्पेस के अंदर वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दी. नाउ वाई, ऐसा क्यों होता है, सी दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न विच वी आर सेइंग हियर इज़ दैट, एक मिनट स्टूडेंट्स, हियर ना यही पोर्शन आएगा ना. वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला वैन यू गो आउट इन ए सन. सन को हमें जब हम जाते हैं बाहर तो क्यों यूज़ करने के लिए कहते हैं, बिकॉज वैन यू गो आउट इन द सन, सो वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला क्या करेगा, उसको कुछ हीट को उसको यूज़ करेगा, बाकी को क्या कर देगा, वो उसको रिफ्लेक्ट भी करेगा, एंड सम हीट इज़ ट्रांसफ़र इन इट्स ऑन, अपने आप में भी दूसरे में भी वो ट्रांसफ़र कर देगा, हीट रिफ्लेक्ट भी बैक कर देगा. नाउ यू विल सी इन समर एंड इन विंटर वी आर यूजिंग द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स, मीन्स यू कैन से सेम कलर क्लोथ्स हम यूज़ करते हैं, नो. विंटर के अंदर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स डार्क कलर क्लोथ्स, समर वी आर यूजिंग लाइट कलर क्लोथ्स. नाउ लाइट कलर और डार्क कलर क्लोथ्स का यूज़ करने के पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, लेट्स आई विल टेल यू, explain with the help of an activity. See, we have taken two identical tin cans. There are two identical cans. This is one can and this is another can. Okay. Now paint outer surface. एक को मैंने black से paint कर दिया, other white से. इसको मैंने कर दिया students black से paint. किससे? Black. So I write here B. इसको हमने paint किया outside it this container from white. सो वाइट कलर से. नाउ प्योर इक्वल वाटर 10 ml मैंने इसमें वाटर यूज़ डाला है एंड 10 ml इसी के अंदर. नाउ इन दोनों को मैंने कहाँ रख दिया बेटा, मिड डे सन के अंदर. सन व्हेन देयर इज सनी डे फॉर एन आवर आई हैव केप्ट इट आउटसाइड. बाहर रखने के बाद नाउ यू विल मेज़र द टेम्परेचर आफ्टर 1 hour. You measure the temperature of this beaker and this one. In which one we will feel it hot? In this one, because black color absorb more heat and reflect less. क्या करेगी स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्ट तो लेस करेगी और एब्जॉर्ब क्या करेगी, मोर. सो डार्क कलर क्या है, एब्जॉर्ब मोर. इसीलिए सेम you can see this is the same reason this container I told you. So here one more example is given here, light color clothes. So does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? और जब उनको आप ये कह सकते हो दोनों कैंस, सी दिस 2 cans, ये 2 cans है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम. हमने देखा इसका टेम्परेचर क्या मिला स्टूडेंट्स, हायर,
और इसका स्टूडेंट जब हमने टेम्परेचर मेज़र किया तो लोअर था. वाई? बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब, आई टोल्ड, मोर हीट. मोर हीट ये एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट कितना करेगा? लेस. वाइट क्या करेगा? यहाँ पे मोर तो ये कर रहा है और लेस रिफ्लेक्ट हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? लेस एब्जॉर्ब कर रहा है और मोर को क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट. अब स्टूडेंट इन दोनों को हम आफ्टर सम टाइम वी विल सी विच वन विल बिकम कूलर फास्टर. कौन सा इन दोनों में से जल्दी ठंडा होगा? यू विल सी यही जल्दी ठंडा होगा और ये देर से, बिकॉज इसकी हीट धीरे धीरे क्या लेस आउटसाइड रिफ्लेक्ट हो रही थी. हीट बाहर कम जा पा रही थी और इसकी हीट बाहर ज़्यादा जा रही थी, इसलिए ये जल्दी कूल्स डाउन. इट विल बिकम कूल्स डाउन फास्टली. कौन सा फास्टली कूल्स डाउन हुआ स्टूडेंट्स? दिस वन. बिकॉज हीट इसने कम ही एब्जॉर्ब की थी लेकिन ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है ये. अंडरस्टूड? नाउ यू विल take this one I have explained. So why? So do this activity suggest you to reason why it is more comfortable to wear white color or you can say dark color clothes in winter. So what you will reason here? In the summer season and light color clothes in summer season and dark color clothes in the winter season. Why? Because dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them. जितनी हीट इसके ऊपर गिरेगी स्टूडेंट्स, जितनी हीट इसके ऊपर गिरेगी उतनी ही उससे ज़्यादा हीट को क्या कर देगा? ये मोस्ट, मतलब लगभग जितनी हीट इसके ऊपर गिरेगी वो मैक्सिमम हीट को क्या कर देगा? ये रिफ्लेक्ट बैक. बट ये कंटेनर का क्या था? जितनी हीट गिरी है इसके ऊपर उससे लेस रिफ्लेक्ट करेगा. सो डार्क कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट लेस हीट. सो डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट और रिफ्लेक्ट कितनी करेगी बेटा डार्क कलर क्लोथ्स? डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड रिफ्लेक्ट लेस. रिफ्लेक्ट क्या करेगी? लेस करेगी. बट ये लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम. पहली बात तो हीट भी कम एब्जॉर्ब करेगा, ओके, बट जितनी एब्जॉर्ब की है उतनी ही क्या कर देगा? मैक्सिमम हीट को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा. दैट्स वाई वी फील मोर कंफर्टेबल इन वेयरिंग लाइट कलर क्लोथ्स इन समर. नाउ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर. अब क्वेश्चन है कि वुलन कलर क्लोथ्स हमें विंटर के अंदर वार्म क्यों रखते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर? सो इन विंटर हम लोग वुलन क्लोथ्स डालते हैं तो हमें व्हाट वी आर थिंकिंग दैट वुलन क्लोथ्स एक्चुअली आर अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग आई एम टेलिंग यू, we are thinking that woolen clothes keeps us warm. Actually this is not a idea, means this is not a correct response. woolen के अंदर क्या होगा? we use woolen clothes. so wool is poor conductor of heat. wool क्या है बेटा? पुअर कंडक्टर है हीट की. और वुल के अंदर अगर आप देखोगे कि हमें ये गर्म रखती, गर्माहट कैसे देती है वुल हमें? कोई तो रीज़न होगा. ऐसे नहीं कि वुल ही गर्म है. वुल एक्चुअल में गर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं है. वुल क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट की. देन यू कैन से वुल के अंदर स्मॉल पोर्स, आपको खाली जगह वुलन क्लोथ्स आप वेयर करते हो तो काफ़ी स्पेस वहाँ नज़र आती है. उस स्पेस के अंदर क्या है? वहाँ पे एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर. इन वुल फाइबर्स के बीच में क्या होगा स्टूडेंट? एयर. यहाँ क्या मिलेगी आपको? एयर ट्रैप है. दिस एयर जो है प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग. अब ये जो एयर है, एयर पुअर कंडक्टर है. पुअर कंडक्टर है तो ये एयर हमारी बॉडी की हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे. सो व्हाट विल वी फील? वार्म. And if you are given, suppose you are given the choice in winter using either one thick blanket
और 2 थिक ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर। मान लो आपको कह दे कि केवल एक मोटा सा कपड़ा डालो, या आपसे पूछा जाए व्हाट यूल यूज़ आइदर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, मतलब पतले पतले 3 ब्लैंकेट जॉइन करके आप ओढ़ के रखते हो, वो ज़्यादा गर्माहट देगा, या आपने एक मोटा ही डाल रखा है वो ज़्यादा गर्माहट देगा। सो वाई? बिकॉज अगर आपने 3 लेयर्स वाला यूज़ किया ना स्टूडेंट्स, आप देखना सर्दियों में आप कितने भी गर्म जैकेट पहन लो, बट नीचे से आप अपनी सेफ्टी के लिए 1 और 2 इनर हॉट, आपने देखा होगा, इनर्स डाल के रखते हैं। 2 इनर्स डाल के रखते हो, 1 इनर्स, उसके ऊपर पतली सी एक और लेयर, देन यू आर वेयरिंग द जैकेट। सो ये 2-3 लेयर्स डालने से रीज़न क्या होगा, इनके बीच में क्या ट्रैप है स्टूडेंट्स? एयर। इनके बीच में क्या ट्रैप है? एयर। एंड वी नो दैट एयर इज़ पुअर conductor of heat. So this more air is trapped here. In between we are using 2 thin blankets की जगह पर 2 thin blankets हमने जॉइन करके टुगेदर हमने ले रखे हैं। सो इनके बीच में क्या है? ज़्यादा एयर है। If air is more, that means it will allow less heat to flow in the surrounding. So we feel hot, हमें गर्माहट सी महसूस होती है। If we will wear a full means a jacket, you can say winter you are using either 1 thick blanket, एक thick blanket यूज़ कर लो, लेकिन 2 thin blanket, but 2 thin blanket together अगर आप join करके यूज़ करते हो, so that will provide you more warmness, वो आपको ज़्यादा वार्म रखेंगे। क्यों? Because air is trapped in between, more air is trapped in between these thin blankets, so that's why we are using this. Now students, at last I will ask one question, one MCQs. This MCQ's answer you will give in my comment box. So what is today's MCQ? Which color clothes reflects less heat? Which color clothes reflects less heat? Number 1, dark color. Students, A right, dark. B, light color, dark color, light color. C का आंसर क्या होगा बेटा? बोथ A and B. विच कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट लेस हीट? लेस हीट कौन से कलर के क्लोथ्स रिफ्लेक्ट करते हैं? सो डार्क कलर है, लाइट कलर है, या बोथ? और D क्या होगा? नॉन ऑफ दिस। सो thank you students for watching my videos. Students, if you will watch the videos, you will not forget anything, but if you will try to do rectification, then you will forget every concept. Now after watching the videos, read this chapter, and this is my help, that if I will explain you, then you are able to understood what I am explaining. But after my explanation, don't depend upon it. You have to read the chapter and then once again watch this video. सी आप मूवीज़ को देखते हो, एक मूवी को देखने के बाद कभी भी आपको पूरी मूवी याद नहीं रहती, बट इफ़ यू विल वॉच इट 2 times then you will remember it maximum. So to get the maximum benefit of these videos, first watch the videos, then student read the chapter, and then again once इसको फास्ट मोड में करके अगेन लिसन इट. दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट स्टूडेंट्स. देर इज़ मेरा कोई बेनिफिट नहीं है. अगर आप नहीं देखोगे तब भी मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है. अगर आप देखोगे तब भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है. दिस इज़ ओनली फॉर योर हेल्प. ए टीचर ऑलवेज, व्हाट ए टीचर वांट्स,
that a child will become one day an officer, and means you can say a successful person in his or her life. That is only my motive. मेरा मोटिव तो यही है स्टूडेंट कि आप लाइफ में पढ़ लिख के कामयाब हो. And if you feel any query, write in my comment box. So thank you students for watching my videos.